Hi guys, how are you? I am Ramesh Chandra Agrahari from Rani Revati Devi Saraswati Vidya Niketan Inter College, Rajapur, Prayag. Welcomes you in YouTube channel Vidya Bharati Kashi Prant. As our channel tries to lighten exam pressure of all examinees, henceforth our channel publishes each and every subject paper before board's main exam papers. In this sequence, I, Ramesh Chandra Agrahari from Rani Revati Devi Inter College, Rajapur, Prayag, represent myself to assure and explain how to solve or how to properly write answers in English paper. Let us see this model paper. As you know, the first section is related to reading and it gives this one is unseen passage. It means you never studied this one. Then how to solve this unseen passage or reading portion? For it, one must read minimum 2 times or 3 times to understand its essence. And if you can understand the essence of this passage, then you may be able to answer these questions. Let us read. The great advantages of early rising is good start. It gives us our day's work. The early riser has done a large amount of hard work before other men had got out of bed. In the early morning, the mind is fresh. There are few sounds of other distractions. So, the work done at that time is generally well done. In many cases, the early riser also finds time to take some exercise in fresh morning air, and exercise supplies him with fund of energy that will last until evening. By the beginning early, he knows that he has plenty of time to do thoroughly all the work he can be expected to do and is not tempted to hurry over any part of it. All the work being finished in good time, he has long interval of rest in the evening before the timely hour when we goes to bed. He gets to sleep several hours before midnight at the time when sleep is most refreshing, and after a sound night's rest rises early next morning in good health and spirit for the labors of a new day. One must read 2 times to understand this essence. लोगों को कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, वो इसका एसेंस समझ जाए इसमें क्या कहा गया है. देन हम क्वेश्चंस का आंसर, अगर हमने एसेंस समझ लिया पैसेज का, then we can easily answer the questions given below. What is the advantage of early rising? अर्ली राइजिंग का एडवांटेज क्या है? तो आपको पैसेज में बताया गया, at early riser have the sufficient time to do all his works, and he has also time for exercise, and at early morning the riser's mind is fresh. आप ये कर सकते हैं. Why is early riser not tempted to hurry over his day's work? यानी कि अर्ली राइजर को दिन के कार्यों के लिए बहुत जल्दी क्यों नहीं रहता है? As you know, as you read this one passage, then he has a lot of time. Early riser also finds time to take some all the works being finished in good time. He has
long interval of the rest evening before timely hour. He has a lot of time, that's why the early riser is not tempted to hurry over his day's work. After then, what is meant by the word distraction? Distraction का मीनिंग क्या है? The meaning of distraction is diversion. And find the opposite word of discourage in the passage. Opposite word of discourage in the passage is डिस्करेज का पैसेज में कौन सा अपोजिट वर्ड है वो आपको बताना होगा यहां पर. देन नेक्स्ट आप देखते हैं सेक्शन बी. दिस वन पोर्शन अबाउट एन एसे और रिपोर्ट राइटिंग. एज यू आर सीइंग, write a letter to your father asking him to send some money to buy books and uniforms. इसमें लेटर लिखना है. You are living out of your city. You are studying in a hostel. Then one must know how he should write letter to father by asking money. तो आप सबसे पहले आप अपना एड्रेस देते हैं राइट हैंड साइड. एड्रेस आपने दिया. वन 26 बी ताराचंद हॉस्टल, देहरादून. Then at first you will have to tell that I have received a letter and I know everything is well at home. I am also good here, but as father, it is month of April and when new session is just going to begin, that's why we want 3,000 rupees to purchase some books and uniform. और लास्ट में आपको दिखाना चाहिए छोटे भाई बहन हैं या लविंग टू छोटे भाई बहन का नाम आप देंगे और लास्ट में आप जाकर यहां पर योर्स या योर डियर सन देन XYZ नाम नहीं मेंशन करते हैं. नेक्स्ट और दिया है या तो आपको फादर को लेटर लिखना था या फिर प्रिंसिपल को आप फुल फी कंसेशन. राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन. प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है. देन एज यू नो at first address principal to the principal, then college name, city. Then you mention, so suppose that this one, to the principal RRD SVN IC प्रयाग. आप मेंशन करते हैं सर. देन आप बताते हैं respectfully I beg to say that I am student of, आप क्लास मेंशन करेंगे जिस क्लास के स्टूडेंट हैं,
और आप बताएंगे आई always get first position in my class. My father is a small businessman. और आप कर सकते हैं my father hold a private job and there are 7 or 6 members in my family. His earning of my father is 7,000 or 8,000 rupees per month. That's why it is feel so difficulty to gain expenses and 4 of them are students. जब आप बताएंगे कि भाई हमारे यहाँ 7 मेंबर हैं, उनमें से 4 स्टूडेंट हैं और इस तरीके से हमें अपने एक्सपेंसेस गेन करने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है। और आपको साथ में ये भी बताना होगा कि आई ऑल्सो गॉट लास्ट ईयर फुल फ्री शिप एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई टीचर्स। और लास्ट में आप मेंशन करेंगे कि काइंडली गिव मी फुल फी कंसेशन सो दैट माई स्टडी मे बी कंटिन्यू। थैंकिंग यू लास्ट में योर ओबीडियंटली फिट करते हैं और उसके बाद XYZ लिखेंगे। एज यू नो वन मस्ट नॉट मेंशन हिज नेम। Then third question is write an article on any one of the following about 60 or 80 words. And the article's topic is an Indian festival, my best friend और my college. दिए गए ऐसे में जो आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो उसे आपको करना है। हेडिंग्स पेपर में दिया हो सकता है या ना भी दिया हो तो आप पैरा चेंज करके आप मेंशन कर सकते हैं या हेडिंग। जैसे इंडियन फेस्टिवल पर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेंशन करना चाहिए इंडिया इज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। या माय बेस्ट फ्रेंड पर आप लिख रहे हैं तो आपको बताना चाहिए अ फ्रेंड इन नीड। A friend in need is a friend indeed। इसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करिए। और इंट्रोडक्शन सबसे पहले दीजिए आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट आई लाइक। आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे, उसके विषय में लिखिए। हाँ, ये 80-90 वर्ड से ज्यादा ना जाने पाए, नियरली 1 पेज। देन आप देखते हैं हाँ राइट अ रिपोर्ट। हाँ, इस पर भी ऑप्शन है, या तो आप इन पर आर्टिकल्स मीन्स शॉर्ट ऐसे आपका 100 क्रॉस करता है, बट आर्टिकल से ये 80-90 के आसपास ही होना चाहिए। राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इन योर कॉलेज। या ऑप्शन दिया है, या तो आपको आर्टिकल लिखना है या फिर आपको रिपोर्ट मेंशन करना है, तो वो भी है रिपोर्ट ऑन रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इन योर कॉलेज। देन यू मस्ट मेंशन अबाउट कॉलेज डेकोरेशन, how college is decorated on that particular day. Then what cultural program were and prize distribution, and you must mention that speech of chief guest and some others. At last you must mention at last president of college or manager of college reached on the stage and उन्होंने आभार ज्ञापन किया।
आपको ये बताना होगा। आप देखते हैं सेक्शन सी ग्रामर, 5 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन मार्क विल बी 1, हर क्वेश्चन का मार्क 1 मार्क्स होगा। आप देखते हैं ऑल गर्ल्स वर सिंगिंग, आइडेंटिफाई द नाउन, इसमें कौन सा नाउन है? ऑल द गर्ल्स वर सिंगिंग, ऑप्शन दिया है, ऑल है। ऑल आप जानते हैं प्रोनाउन होता है, गर्ल्स वर सिंगिंग, तो जो आपको दिखाना है यहां पर, ये यहां पर वर होना चाहिए था, वर। यहां पर ये वर होगा, तो आप बता सकते हैं नाउन विल बी द गर्ल्स, गर्ल्स नाउन है। माई मदर, सेकेंड, माई मदर इज वेरी काइंड, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, मेरी माँ बहुत ही दयालु हैं, तो माई मदर नाउन हो गया, इज वर्ब हो गया, वेरी एडवर्ब हो गया, बहुत दयालु हैं, यानी कि ये आपका एडजेक्टिव है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ही ड्रो हिज कार वेरी स्लोली, आइडेंटिफाई वर्ब, एडवर्ब। यू शुड नो हाउ adverb is formed. To form adverb at the end of word ly is added by making adverb. adverb बनाने के लिए सेंटेंस के अंत में ly आता है। इसका मीनिंग भी जाने। He drove his car very slowly, वो अपने कार को बहुत धीरे धीरे चला रहा था, यानी कि बहुत धीरे धीरे, ly जुड़ा है। मैंने बताया कि एडवर्ब वो शब्द होता है जिसमें ly जुड़ा हो मोस्टली, या आपको जानना चाहिए एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। मोस्टली वो वर्ब के से बताते हैं। और वो कार बहुत धीरे धीरे चला रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो सीधा सा इसका कनेक्शन वर्ब से है, ly आया है, आप इजीली पहचान सकते हैं। कोई भी शब्द जिसके लास्ट में ly जुड़ा रहेगा वो एडवर्ब होता है। नेक्स्ट है आपका, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन माउंटेन्स, आइडेंटिफाई आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स इसमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज यूजुअली, देयर, द, माउंटेन्स। You should know a, an, and the is collectively called articles. It means option C is correct. The is article. He plays hockey in the morning. Identify the tense of sentence. ये he fifth is he plays hockey in the morning. Identify the tense of sentence. उसमें कौन सा tense है? Then you must know whenever a sentence have no helping verb, then that will be
ईदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। जब किसी भी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वह टेंस केवल वो सेंटेंस केवल दो टेंस में हो सकता है, या तो वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा और या फिर वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और हमने बताया कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है या फिर पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। देन हाउ वी आइडेंटिफाई दैट द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट? फॉर इट वी मस्ट आइडेंटिफाई वर्ब फॉर्म। इफ वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म, अगर वर्ब पास्ट फॉर्म में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट सिमिलर होने पर एस या ईएस अकॉर्डिंग टू नीड हो सकता है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो एस या ईएस भी नहीं होगा। यानी कि आपको बताया गया ऐसा कोई भी सेंटेंस जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इट मींस द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड द ब्रैकेट्स। जैसा ब्रैकेट्स में डायरेक्ट किया गया है वैसे उस सेंटेंस को बनाना है। फर्स्ट है ही सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट गोइंग देयर, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर मेकिंग इनडायरेक्ट वन मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर कोई करेक्शन करते हैं, कंजक्शन आप लगाते हैं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और आप जानते हैं when reported speech is in interrogative then asked or inquired of should be mentioned in place of said। asked or inquired of, आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग आप सेट टू के स्थान पर करते हैं, और जनरली आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। बट कंजक्शन इफ और वेदर इज यूज्ड ओनली व्हेन सेंटेंस बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। जब सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो अब ही इफ या वेदर लगेगा। बट व्हेन सेंटेंस बिगिंस विद WH word, it means question word, then question word should be converted into reported speech, I mean conjunction। तो इस y को आप कंजक्शन बनाएंगे ऐसे, he asked me। अब y को हमने कंजक्शन बनाया। अब रिमेनिंग सेंटेंस शुड बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के लिए आपको पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यू है, बट यू शुड नो यू इज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए हमें सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, आई हो जाएगा आई। एंड दिस वन इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन this one should be converted into past continuous, I was not going there, not going there। इस तरीके से ये आपका इनडायरेक्ट बना। इंपरेटिव सेंटेंस भी वो हो सकता है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर आपको क्या फिट करना है। As you know, what is imperative sentence? Imperative sentence give the sense of order, advice, suggestion or request। Imperative sentence में order, advice, suggestion या request का सेंस जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली या सर है तो आप रिक्वेस्टेड ही करेंगे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच से आपको ऑर्डर देने का सेंस जाता है, कोई किसी को आदेश दे रहा है तो आप ऑर्डर्ड करेंगे। और कंजक्शन आप ऐसी स्थिति में टू लगाया करते हैं। आपका नेक्स्ट है Who teaches you English, change into passive voice। passive voice बनाना है। एंड
To convert the sentence into passive voice, one must have to identify its tense. इसका टेंस आपको आइडेंटिफाई करना होता है। दिस वन इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है या वो पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और फर्स्ट फॉर्म है उसमें एससीआईएस जुड़ा है या नहीं जुड़ा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और आपको जानना चाहिए या जानते हैं ऑलरेडी, व्हेन नेवर और हु इज मेंशन्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट देन सच टाइप ऑफ सेंटेंस is made as simple sentence। सिंपल सेंटेंस की तरह बनाते हैं। कहने का आशय ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं वर्ब में एस लगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस में हम लोगों को इज एम आर लगाना पड़ता है। और आप देखते हैं पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो है, आप यू भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। आप किसी को सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट आप यू को पहले ले आएंगे तो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसा एक्टिव होता है पैसिव वैसा ही होगा। पहले क्वेश्चन वर्ड आया है तो हमें भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। हु की जगह पर आप बाई होम का यूज करेंगे, बाई होम। देन आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आपको इज एम आर लगाना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। नया सब्जेक्ट आपका यू बनेगा तो बाय होम आर हो जाएगा, आर यू। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं टॉट इंग्लिश, ये आपका पैसिव वॉइस बना। आपका नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स wherever necessary। हमें सेंटेंस को पंक्चुएट करना है और अकॉर्डिंग टू नीड हमें कैपिटल लेटर्स और मार्क्स वगैरह फिट करना होगा। आप जानते हैं पंक्चुएशन, दिस वन इज प्रॉपर स्टाइल ऑफ राइटिंग। पंक्चुएशन टेल्स अस हाउ शुड प्रॉपरली राइट, हमें प्रॉपरली कैसे लिखना चाहिए। देन बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर, इट मीन्स आप ये आई यहां पर स्मॉल है, स्मॉल है, ये स्मॉल आई, इसे आप कैपिटल करेंगे आई सेड। फिर देखते हैं ये किसी का स्टेटमेंट है, मैंने कहा यू विल नॉट फेल, तो किसी भी स्टेटमेंट को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं और वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच का बिगनिंग भी आप कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, इस यू का वाई कैपिटल हो जाएगा, यू विल नॉट फेल। फिर हम बात किससे कर रहे हैं, श्याम से कह रहे हैं। हमने कहा कि आप फेल नहीं होगे श्याम, तो ये वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस इट मीन जिससे हम बात करते हैं, जिसको हम एड्रेस करते हैं, उसे वोकेटिव केस कहते हैं। और वोकेटिव केस अगर रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में आता है तो इस वोकेटिव केस के पहले आपको कॉमा लगाना होगा। ऐसा श्याम, श्याम प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका भी लेटर कैपिटल होगा। यहाँ पर फुल स्टॉप देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। और आप जानते हैं कि पंक्चुएशन बताता है कि हमें प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस को कैसे लिखें। तो ये आई इस्तेमाल था, कैपिटल किया। फिर ये स्टेटमेंट था किसी का, तो किसी के स्टेटमेंट को आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करते हैं और उसके पहले कॉमा का यूज करते हैं।
चूंकि श्याम को एड्रेस किया गया, ये वोकेटिव केस था, प्रॉपर नाउन है तो श्याम को आपने एस कैपिटल बनाया। और वोकेटिव केस अगर लास्ट में आता है तो उसके पहले कॉमा करना पड़ता है, और अगर स्टार्टिंग में आता है तो इसके बाद कॉमा करना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट आगे देख रहे हैं। फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। इस सेंटेंस के वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इन्हें आप करेक्ट ऑर्डर में फिट करके एक क्लियर सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट वर्ड है, आप देख रहे हैं, बर्ड, इन हैंड, बुश, वर्थ, अ, इज, टू, इन द, देन। यानी कि ये आपको याद आना चाहिए, ये प्रोवर्ब हो गया, ये कहावत हो गया। और कहावत वो क्या है? अ बर्ड इन हैंड इज is is worth than two in the bush. A bird in hand, sorry, yeah, a bird in hand is worth than two in the bush. यानी कि एक हाथ में एक पंछी है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है अपेक्षाकृत जो बुश में पास की झाड़ी में दो बर्ड बैठा है। यानी कि हम दो बर्ड पकड़ने के लिए अपने हाथ में आए एक बर्ड को उड़ा दें, ये ठीक नहीं है। हिंदी में कहावत है, नौ नगद ना तेरा उधार, ये उसका इंग्लिश रूपांतरण है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ देन टू इन द बुश। अपेक्षा है आप समझ रहे होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इसका स्पेलिंग आपको कंप्लीट करना है। गेस करिए ये क्या है। दिस वन इज कॉन्शियंस। कॉन्शियंस, बहुत से लोग कॉन्साइंस कहते हैं, वो गलत कहते हैं। कॉन्शियंस इट मींस अंतरात्मा होता है, यानी कि यहां पर आई और ई फिल होगा, कॉन्शियंस। देन आपका ट्रांसलेशन है 5 मार्क्स का। आप कैसे करते हैं? राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो आप बताएंगे राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ही सफर्ड सो मच फॉर द लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वे जंगलों में रहने लगे। वे जंगलों में रहने लगे, इसका मतलब वो जंगलों में रहना शुरू किए, यानी कि हो गया ये वे राणा प्रताप के लिए है इसलिए ही होगा, दे नहीं। ही बिगैन टू लिव, दो वर्ब साथ में आ गया, रहना और शुरू करना। जब दो वर्ब साथ में आता है तो दूसरे वर्ब को आप इन्फिनिटिव बनाते हैं, यानी कि ही बिगैन टू लिव इन जंगल। जंगल अपने आप में इंग्लिश वर्ड है, आप जंगल कर सकते हैं या फॉरेस्ट कर सकते हैं। बट उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट हिज डिफीट, अपनी हार उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इस तरीके से आपने देखा, ये ट्रांसलेशन था। और सेक्शन डी, सेक्शन डी में आप देखते हैं ये लिटरेचर पोर्शन है। Read the following passage and answer the questions given below. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk their lives for an idea.
I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. ये लाइनें पढ़कर आपको याद आना चाहिए ये किस चैप्टर का है। ये क्वेश्चन भी है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। उस पैसेज का नाम लिखिए जिसे लिया गया है। याद करिए ये लाइनें किस चैप्टर में थी। भूल गया, बंद कर दिया। तो आपने गेस किया ये किस चैप्टर से है। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने प्रॉपरली चैप्टर्स को देखा है, प्रॉपरली आपने पढ़ा है, तो बेशक आपको याद आएगा ये चैप्टर कौन सा है। हु इज रियली अ ब्रेव मैन, वास्तव में बहादुर आदमी कौन है, तो यहां पर डिफाइन किया गया है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन, बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता या जो डरता नहीं, बट बहादुर आदमी वो है हु हाँ, बल्कि बहादुर आदमी वो है जो हु कंक्वेयर्स दैट फियर, जो अपने डर को जीतता है। तो आपने देखा हु इज रियली ब्रेव मैन, ये आप मेंशन कर सकते हैं। ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर आदमी वो आदमी नहीं है जिसे डर ना लगे या जो डरता ना हो, बल्कि बहादुर आदमी वो है जो अपने डर पर काबू पाए, जो डर को जीत ले। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये 60 वर्ड्स में लिखना है लेंचो। अ लेटर टू गॉड, आपको चैप्टर याद आना चाहिए। अ लेटर टू गॉड का मेन कैरेक्टर है। जब आप किसी का भी कैरेक्टर लिखना शुरू करें तो वो स्टार्टिंग में 2-3 लाइनें ऐसे फीड करना चाहिए। मैं बता रहा हूं, आप जैसे कैरेक्टर लिखना शुरू करते हैं तो आप लिखना शुरू करेंगे लेंचो लेंचो इज द मोस्ट परफेक्ट and complex character of the story the whole story moves around his personality
हाँ, ये लेंचो का कैरेक्टर देख रहे थे, आगे आपको मेंशन करना था कि द होल स्टोरी मूव्स अराउंड हिज पर्सनालिटी एंड वी फाइंड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन हिम। और उसके बाद आप पैरा चेंज कर करके 2-3 क्वालिटी उसमें दिखाइए। अब बताएंगे, एट फर्स्ट ही वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही वर्क्स जस्ट लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड। सेकेंड आपको बताना चाहिए, ही वॉज एन एथीस्ट पर्सन, वह एक आस्तिक व्यक्ति था, वह ईश्वर में विश्वास रखता था। आपको बताना चाहिए, although he was a farmer but he was not an illiterate person, he also know how to read and write, वह पढ़ना लिखना भी जानता था। That's why he began to write a letter to describe its problem, अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हुए उसने लेटर लिखा था गॉड के लिए। ये सारी चीजें 60 वर्ड्स में नियर अबाउट 1 पेज लिखना चाहिए। फिर आप देखते हैं, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो आप कैरेक्टर, या तो आप इस कैरेक्टर को करेंगे, या तो ये क्वेश्चन आपको करना है, लंचो का कैरेक्टर हमने बताया कि कैरेक्टर कैसे आपको फिट करना चाहिए, या फिर आपको ये बताना होगा व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विद एनी। एट फर्स्ट यू विल हैव टू मेंशन दैट मिस्टर कीजिंग taught mathematics to Annie in the class. क्लास में एनी को मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, बट एनी वॉज सो टॉकेटिव गर्ल, वो बहुत ही टॉकेटिव थी, बातचीत करती रहती थी। मेनी टाइम्स मिस्टर कीजिंग फॉरबिड टू talk, and at last when he became so puzzled, then it means Mr. Keating asked her write an essay on a talking box. लास्ट में उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप अपनी आदत नहीं सुधार रहे हैं तो आप टॉकिंग बॉक्स पर ऐसे लिख कर लाइए। वो बार बार क्लास में बात करती थी। मिस्टर कीजिंग जो उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाया करते थे, कई बार मना किया, नहीं मना किए तो उन्हें कहा कि ठीक है, आप टॉकिंग बॉक्स पर आप इसे लिखकर आप हमें दिखाएंगे। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 वर्ड्स ईच। अब आप देख रहे हैं इन क्वेश्चन में ये आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 में केवल कोई 2 ही आपको अटेम्प्ट करना है। वेयर इज कुर्ग? दिस वन इज, दिस सिटी इज इन कर्नाटक। जो भी है आपने पढ़ा होगा, तो बताएंगे कुर्ग क्या है। ये कर्नाटक शहर में है, और भी बताएंगे ये 2 शहरों के बीच में स्थित है। पर्टिकुलर आप भी जानिए, उस चैप्टर्स को पढ़िए और समझिए। कुर्ग ये स्पेशली चैप्टर है, पढ़िए जानिए। व्हाई डिड वाली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ? वाली को रास्ते में हंसी क्यों आ गई? आप चैप्टर जरा मेमोराइज करिए, याद करिए और देखिए। वाली को हंसी रास्ते में इसलिए आ गई थी कि वो जब बस पर बैठी थी तो एक गाय बस के सामने आ गई थी, रेस्ड हर टेल हाई, अपनी पूंछ को ऊपर उठाए हुए, एंड द बस ड्राइवर हॉर्न मेनी टाइम्स, कई बार हॉर्न किया, और जब भी हॉर्न बजाता था वो और भी डर जाती थी और गाड़ियों के सामने वो आती थी, इसलिए उसे हंसी आ गई थी। मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। ये वर्ड मीनिंग अगर आपको क्लियर है
हाँ ये देखिए, ये लिस्ट ए लिस्ट बी है। वर्ड मीनिंग sermon, thriftily and rebuke, spend money carefully, a scolding, religious moral talks। sermon उपदेश देना होता है, नैतिकता की बातें करना होता है, यानी कि दिस वन विल बी रिलीजियस और मॉरल टॉक, धार्मिक या नैतिक बातें। थ्रिफ्टली, स्पेंड मनी केयरफुली, बहुत ही सोच समझकर पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति स्पेंड थ्रिफ्ट कहते हैं। और रिबक का मीनिंग डांटना होता है। आप ये देख रहे हैं, read the following extract and answer the questions given below। ये जो पोयम एक्सट्रैक्ट है, पोयम की कुछ लाइनें यहां पर हैं, इसे पढ़िए और इसके क्वेश्चंस का आंसर देना है। बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। हाउ इज ही इन द केज? वह केज में कैसे है? तो सबसे पहले आप बताएंगे, ही इज लॉक्ड in a concrete cell, although he has strength, he is so much power, yet he is helpless। उसमें बहुत पावर है, फिर भी वो हेल्पलेस है, because that is locked in a concrete cell। वह एक कोठरी में बंद किया गया है, एक सेल में बंद किया गया है, पावरफुल होते हुए भी वो हेल्पलेस है। How does he react to the visitors? वो विजिटर्स को क्या रिएक्ट करता है? He doesn't care for visitors, it means ignoring visitors। वो विजिटर्स की कोई केयर नहीं करता है, इग्नोर करता है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ, आपका नेक्स्ट 12th है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आप देख रहे हैं ये 4 मार्क्स का होता है। सेंट्रल आइडिया लिखना है, 2 पोएम दिया है किसी एक पर, या तो फायर आइस पर या फिर डस्ट और स्नो पर। अगर आपको सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से तैयार है, आपने लर्न किया है, तो आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। नहीं और में दिया भी है, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी वन पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आप अपनी टेक्स्ट बुक की कोई भी 4 लाइन की पोएम लिखना है जो आपकी पेपर में नहीं आया हो। इसमें मार्क्स भी ठीक मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। तो अगर सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे से तैयार है, अब आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। अगर सेंट्रल आइडिया आपको प्रॉपरली तैयार नहीं है, तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक की कोई 4 लाइन की पोएम लिखना है। लेकिन ध्यान रहे, वो पोएम जो आप मेंशन कर रहे हैं वो पेपर में नहीं होना चाहिए। आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 25 वर्ड्स। 25 वर्ड्स में आंसर्स देना है, केवल 2 क्वेश्चंस का, यहां पर 3 है, एक ऑप्शन के लिए है। Why does Mrs. Pomfrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? मिसेस पॉम्फ्री के मन में ऐसा क्यों आया कि जो उनका डॉग रिकवर हुआ उसमें सर्जरी के कारण उसमें रिकवरी हुई? बिकॉज दैट वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन आपने चैप्टर पढ़ा है, वास्तव में उसकी सर्जरी नहीं हुई थी। उससे डॉक्टर ने एक्सरसाइज वगैरह कराया था, अन्य डॉग्स के साथ एक्सरसाइज हुआ था, वो दौड़ता था, खेलता था, जिसके कारण उसमें वो रिकवर हुआ। लेकिन मिसेस पॉम्फ्री cared so much of his dog, he facilitated
बहुत सी फैसिलिटी उन्हें दी हुई थी, इसलिए वो यहाँ पर बहुत मोटा हो गया था, तगड़ा हो गया था। तो कुछ वो एक्शन वाली कोई एक्टिविटीज वो कर नहीं पाता था, इसलिए जब वहाँ हॉस्पिटल पर गया तो उसे अन्य डॉग्स के साथ एक्सरसाइज कराया गया, दौड़ाया गया, उसके साथ खेलता था। लेकिन वो पॉम्फ्री तो यही मानती थी कि ये हमारा ठीक इसलिए सर्जरी हुआ है हॉस्पिटल में। वास्तव में ऐसा था नहीं, एज यू ऑलरेडी नो दैट। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ मेट हिम? चैप्टर अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है था, देखा था घर में, तो ये क्वेश्चन देखकर आपको याद आया होगा। द थीफ स्टोरी का ये क्वेश्चन है। अनिल, व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थीफ मेट हिम? अनिल क्या कर रहा था जब थीफ उससे मिला? तो ही वाज वॉचिंग रेसलिंग मैच, वो रेसलिंग मैच देख रहा था। और ही वाज लुकिंग सो इज इन कंफर्ट। अब बता सकते हैं, या एब्राइड्स की हॉबी क्या थी उसके बचपन में? बचपन में लोग चीजों को, बहुत कुछ बच्चे होते हैं चीजों को कलेक्ट करते हैं। तो एब्राइड साइंटिस्ट, आपको याद आया होगा, साइंटिस्ट थे एब्राइड। ये बचपन में कॉइन्स कलेक्ट करते थे, स्टोन्स कलेक्ट करते थे। ये बचपन में बताया उनकी क्या क्या हॉबी थी, ये आपको मेंशन करना है। ग्रिफ आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। अब नीचे फिर से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। वो लॉलेस पर्सन था, इट मीन्स वो रूल्स रेगुलेशन नहीं मानता था। एज यू नो, ग्रिफिन वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट। He invented something by which one can be transparent. कोई भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, सामने वाला नहीं। आपने कोई फिल्म देखा था, तो देखा कि ग्रिफिन वो लॉलेस पर्सन था, वो रूल्स रेगुलेशन नहीं मानता था। उसने शॉपकीपर की शॉप में आग लगा दी थी। जो भी आपने चैप्टर में देखा है, बहुत क्लियरली, बिना किसी जल्दबाजी के चैप्टर्स को पढ़िए, समझिए, और काफी कुछ इनमें से आ सकता है। तैयारी कीजिए उसकी। डिस्क्राइब भोलीज एक्सपीरियंस ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल। इन दोनों में इसको ये करना था, भोली के एक्सपीरियंस को बताना है फर्स्ट डे स्कूल। भोली वॉज अ सिंपल गर्ल। एज यू नो, रामलाल वॉज हिज फादर। First day Ramlal handed over to his principal, handed over Bholi to his principal, उसके प्रिंसिपल को दिया। At first Bholi was so nervous when he was asked, उससे पूछा गया his name, then वो अपना नाम भोली बताई। वो भोली अपना नाम बताते बताते रोने लगी, क्योंकि उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि लोग हंसेंगे, उस पर रोएंगे। नेक्स्ट है आपका है 15th, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, 2A पोर्शन में है और 2B पोर्शन में क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स के हैं। एक्चुअल प्राइस ऑफ द नेकलेस ऑफ मैटिल्डा's फ्रेंड वाज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। जो एक्चुअल प्राइस था नेकलेस का मैटिल्डा के फ्रेंड के, वो 500 फ्रैंक्स से ज्यादा नहीं था। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इट वॉज समर व्हेन ग्रिफिन वॉन्डर्ड विदाउट मनी एंड क्लॉथ्स। आपने देखा था वो समर का सीजन नहीं, वो विंटर सीजन था। इट मींस ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। आपका नेक्स्ट है द सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऑप्शन को जो ज्यादा सुटेबल आपको लगे वो फिट करना। जैसे तहसीलदार साहिब एडवाइस रामपाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू, कहाँ? मार्केट, स्कूल, पार्क या गार्डन। तो आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए
उन्होंने एडवाइस किया था रामपाल को कि अपनी बेटियों को वो स्कूल भेजे। तहसीलदार साहब ने कहा था। द हस्बैंड ऑफ मैटिल्डा वॉज इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड एजुकेशन। वो बोर्ड एजुकेशन ऑफिस पर क्या थे? वो सेक्रेटरी थे, वो इंस्पेक्टर थे, वो प्यून थे? नहीं, वो क्लर्क थे। अपेक्षा है आप लोगों को चीजें काफी क्लियर हुई होंगी। इन्हें आप बहुत ध्यान से देखकर इसके क्वेश्चंस आपको तैयार करना चाहिए। काफी अपेक्षा है कि इससे कुछ क्वेश्चंस काफी कुछ मैच करेंगे आप, तो इसके सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करना चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो। इट्स ओके, थैंक यू।